Then classification of verbs on terms of limitation या changeability. We have finite and non-finite. Finite, non-finite. Now verbs always change. Verbs always change with tenses. There are tenses and tenses के types. We all know ना, V1, V2, V3, ये तो सबको पता है. जब हम लोग हमारा पार्टिसिपल या पास्ट टेंस बनाते हैं और नॉर्मल ईडी ऐड करके बनाएं, नॉर्मली, जैसे कि यू हैव वेट का वेटेड, वेट वेटेड, टाई टाइड, these words that I told you are finite verbs. और फाइनाइट वर्ब्स हमेशा लिमिटेड होंगे नंबर, पर्सन और टेंसेस से. कॉन्जुगेशन भी उनकी ईडी लग के एकदम ही अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगे. लेकिन वर्ब्स जो कि नॉन फाइनाइट होते हैं उनका कॉन्जुगेशन कभी भी एक स्ट्रक्चर में नहीं होता, एक स्ट्रक्चर में नहीं होता, क्योंकि सिट का सिटेड नहीं होता, सिट का पास्ट टेंस सैट होता है. So this sit becomes a non-finite verb. Finite verb have a subject, therefore they show inflections limited to the person, number and subject. As this subject uses different tenses of its verb to show the time or a state of being, the verb is limited by tense too. Observe the following examples to know how this happens. नंबर क्या है यहाँ पे, नंबर से देखो कैसे लिमिटेड हो रहे हैं. ही इज अ सिंगुलर प्रोनाउन है, सब पर्सन है यहाँ पे. ही वॉक्स, सो ही इज सिंगुलर, तो जो वॉक हमारा वर्ब है वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा. अगर मैं कर दूंगी दे वॉक, दे है अगर, दे बिकॉज प्लूरल है तो मेरा वर्ब क्या हो जाएगा, वॉक हो जाएगा. अब यू विल से मैम वॉक प्लूरल कैसे हुआ, ऐसे नहीं लगा हुआ. ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आपको नाउन को और आई वुड से सब्जेक्ट को, किसी सब्जेक्ट को या नाउन को आपको प्लूरल में करना होता है, नाउन को प्लूरल करना है ऑब्जेक्ट को, तो आप एस ऐड करते हो. लेकिन अगर वर्ब को प्लूरल करना है तो आप एस हटा देते हो, है ना. सो इसका मतलब ये प्लूरल है, वॉक प्लूरल है. दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 1. So they, which is plural, walk. He, which is singular, walks. Person देखो, we is the first person, like fruits. You is the second person, like fruits. She is the third person, likes fruits. Tense के according भी change करते हैं. Remo is writing his autobiography. ये present है. Remo wrote his autobiography last year. This is simple past. Remo has written, that is past perfect. तो tenses के according भी ये वाले change होते हैं. These are called as your finite verbs. Non-finite verbs on the other hand do not have a subject, so they are free to be afflicted in any form. किसी भी form में ये क्या होते हैं, change होते रहते हैं. Let me just check. Am I audible to you? Yeah. ठीक है. सो किसी भी फॉर्म में चेंज होंगे. दे रिमेन इन द सेम फॉर्म अक्रॉस ऑल चेंजेस और दे कैन चेंज. ये अपने रिस्पेक्टिवली तरीके से चेंज करेंगे. नंबर, ही इज सिंगुलर, लर्न्स सिंगिंग डेली. दे लर्न सिंगिंग डेली. लर्न एक फाइनाइट वर्ब है, सिंगिंग नॉन फाइनाइट हो गया. पर्सन, we is the first person, found the men severely wounded. You, that is the second person, found the men severely wounded. She, third person, found the men severely wounded. हर फॉर्म में फाउंड ही है, हर फॉर्म में फाउंड है, चेंज ही नहीं हुआ. टेंस में रेमो इज राइटिंग, रेमो इज राइटिंग. This is to be published with reference to the journal he is writing. Remo wrote. This is to publish in referred journal. Remo has written is to be published in a preferred journal. So here write is finite but published या फिर referred जैसे जो words हैं ये non finite है. Writing भी तो हमारा verb है ना, यहाँ देखो writing तो इसे change, sorry publish भी तो हमारा verb है ना, publish तो same रह रहा है, publish, referred ये तो same है. तो ये वाले जो words हो जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, they are called as non finite.
नॉन फाइनाइट, ये टेंस नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। द 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स, अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी 3 तरीके के हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन इंग्लिश आर infinitive, gerund and participle. Remember that a verbal is a form of a verb that functions as a part of other part of the speech in a sentence. The infinitive is used as to plus first form of the verb. First form of the verb. Verbal functions usually as a नाउन, और ये कैसे वर्क करते हैं, नाउन की तरह यूज करते हैं, बट समटाइम्स एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। गेरुंड्स क्या होते हैं? गेरुंड्स ऐसे वर्ब होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिस पे आईएनजी लग जाए, और ये भी कैसे नजर आते हैं, नाउन जैसे नजर आते हैं। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट एक्ट एज अ नाउन, और समटाइम एडजेक्टिव और समटाइम एडवर्ब, ठीक है। लेकिन गेरुंड्स नाउन की तरह एक्ट करते हैं। जैसे स्विमिंग इज माय फेवरेट एक्सरसाइज, तो स्विमिंग टू स्विम करना क्या होता है, स्विम करना आपका वर्ब है, आईएनजी लग गया, स्विमिंग वर्ब प्लस आईएनजी, ये गेरुंड बन गया और ये नाउन की पोजीशन पे है। मैंने लिखा स्विमिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट, ओके। सो स्विमिंग, मैंने बोला था आपको कि जो भी नाउन होगा वो या तो सब्जेक्ट की पोजीशन पे आएगा या वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आएगा। इसका मतलब ये तो नाउन हो गया, बट इट इज अ वर्ब और आईएनजी फॉर्म है और एक्ट कर रहा है नाउन की तरह, तो ये हो गया गेरुंड। द पार्टिसिपल इज अ वर्बल एग्जिस्टिंग इन द प्रेजेंट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, पास्ट V3 एंड परफेक्ट having plus V3 form and functioning as an adjective. और participles वो होते हैं जो adjective की तरह आपको नजर आते हैं। This is it. I hope this is clear to everyone जो हमने आज पढ़ा है। Is it clear? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।